आंसर वाज थर्ड ओनली. It has been brokered by World Bank, not World Trade Organization. ठीक है. And the second point, what was the second point? It allows the unrestricted access to of Jhelum to India. नहीं, झेलम नहीं, Jhelum, Chenab and Indus. These are the western rivers. These have been given to Pakistan. इंडिया को रावी, ब्यास इसमें है नहीं, सतलुज एंड ब्यास. These three rivers have been given, like unrestricted access has been given to India. Fine. This is very important from exam point of view. ठीक है. This question was also good one. Now, RBI analyzes the performance of small finance banks. In one of my previous lectures, I have dealt with small finance banks in a great detail. ठीक है. You can check that in the description link. The link to that video has been given in the description link. You can check that. So what RBI has done is performance review of these small finance banks. ठीक है. So first of all, I have divided this whole slide into two parts. This is important findings that the RBI report has found, and this is SFBs at a glance. Small finance banks are what? Small finance banks are those banks which serve the smaller needs. ठीक है. Like scheduled commercial banks like SBI, है ना, या HDFC. HDFC is not a, okay, it is also scheduled commercial bank. तो ये सारी प्राइवेट बैंक, तो all these banks have serve a larger need. For example, कंपनीज को सर्व करते हैं, है ना, और MSMEs को सर्व करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को सर्व करते हैं. इन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम कि इनका कस्टमर बेस कई बार स्मॉलर या मार्जिनल, जो सोसाइटी का मार्जिनल पर्सन है वो नहीं हो पाता. ऑल्दो PSL नॉर्म्स मैंडेट 40% लेंडिंग टू द स्पेशल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. देयर इज अ वीडियो अबाउट PSL नॉर्म्स. The link will be given in the description. ठीक है. Please go through it. PSL norms are very important from prelims point of view. ठीक है. PSL norms पहले भी आ चुके हैं 2 बार. ठीक है. And there's a high chance कि क्योंकि PSL norms are being constantly updated. ठीक है. And they are very important from sociological impact. Socio-economic impact बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी बैंकिंग का 40% जो net exposure of the credit है, that has been set aside for the weaker section. And that is why जो PSL norms हैं, they are going to have a great impact on the socio-economy of the most marginalized section of people. ठीक है. So please go through that video on PSL norms. Now, small finance banks serve the needs of the credit needs of or the banking needs of the most weaker sections of the society. ठीक है. तो small finance banks are required to have a minimum paid up capital of rupees 2 billion as compared to rupees 5 billion. ठीक है, of scheduled commercial bank. For example, if you have to open a scheduled commercial bank, you should have at least 5 crore rupees as a paid up capital. और अगर small finance bank start करना है तो 2 billion rupees. The second is again PSL at least 75% as compared to 40% of scheduled commercial banks. That is the net credit exposure of these small finance banks, है ना, at least 75% is to go to the weaker sections of the society. Means small finance banks का जितना lending है, जितना भी loan offer करते हैं small finance banks, उसका 75% they have to offer to what? The weaker sections of the society. और scheduled commercial banks के रिगार्ड में ये law क्या है? 40% of the net lending. An important point is at least 50% of the loan extended should be less than rupees 25 lakh. That is, जितना भी आपका net exposure है ना, उसका 50% लोन जो है वो 25 लाख रुपीस से कम वैल्यू वाले होने चाहिए. ठीक है. And minimum capital adequacy ratio should be fixed at 15%. Capital adequacy ratio we all know, that also we have taught in our previous lectures, but I'll tell you in a bit of detail. Capital adequacy ratio, that is, okay, capital adequacy ratio shows the amount of risk total capital. ठीक है. अगर हम capital that is available, ठीक है, upon risk weighted assets, ठीक है,
आपके पास टोटल कैपिटल कितना है और आपके पास रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं, उसका रेशियो जो है वो शो करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. दिस इज CAR is equal to capital अपॉन रिस्क वेटेड एसेट रेशियो. ठीक है. ओके. कैपिटल टू रिस्क वेटेड. अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्क वेटेड एसेट्स. अगर रिस्क वेटेड एसेट्स अगर आपके ज्यादा हो जाएंगे तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी कम हो जाएगा. ठीक है. एंड बेसल नॉर्म्स, जो बेसल 3 नॉर्म्स है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी 10%. ठीक है. बट RBI हैज मैंडेटेड दैट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी 15% मिनिमम. ठीक है. ओके, अंडरस्टूड. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अगर और ज्यादा डिटेल में समझने की हम कोशिश करें, थोड़ा सा, इट विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम. तो कैपिटल एडिक्वेसी दैट इज किसी बैंक का एक्सपोजर, जो लोन्स होता है वो इस बैंक का एसेट है और जो डिपॉजिट्स हैं वो उसकी लायबिलिटी है. आप जो भी बैंक में डिपॉजिट करते हो वो बैंक के लिए एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है. बैंक जो आपको लोन देता है वो बैंक का एसेट है. ठीक है. तो बैंक्स लोन बहुत टाइप के होते हैं. बैंक का कैपिटल भी बहुत किस्म का है. लाइक कैश है, गोल्ड है, इस पे रिस्क कम है. कैश पे रिस्क 0 है. गोल्ड पे रिस्क है. क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है. लोन्स जो एक्सटेंड करता है, अगर माल्या को लोन दिया था किसी बैंक ने तो उसका रिस्क बहुत हाई था. ठीक है. और बाकी अगर किसी स्टेबल इन्वेस्टर को, किसी स्टेबल कंपनी को लोन देते हैं तो उसका रिस्क कम होता है. ठीक है. तो अगर रिस्क वेट लगा दें हर एसेट का, लाइक फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज मोर. अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट ये है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. दिस 100 रुपीज वॉज गिवन टू गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के साथ रिस्क वेट बहुत कम है. ठीक है. तो गवर्नमेंट का रिस्क वेट की वैल्यू बहुत लो है, फॉर एग्जाम्पल 1%. ठीक है. ये 1000 रुपीज माल्या को दिए गए, इसका रिस्क वेट 10% है. ठीक है. ये 1000 रुपीज किसी और दूसरे स्टेबल कंपनी को, NHPC को दिए गए. NHPC का रिस्क वेट है लेकिन 4% के अराउंड है. ठीक है. तो 100 ये हो जाएगा 100 इंटू 10% उसमें ऐड करके. ठीक है. और इसमें 4% ऐड करके, फॉर एग्जांपल ये 100 हो गया, ये 1100 हो गया, ये हो गया फॉर एग्जांपल 1250. ठीक है. अब इन सारे को ऐड कर दोगे तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपका रिस्क वेटेड एसेट होगा. यानी रिस्क, आपका जो एसेट है उसको उसके रिस्क से मल्टीप्लाई करके सबका सम करके हम रिस्क वेटेड एसेट निकालते हैं. यानी अगर किसी बैंक ने ज्यादा माल्या को लोन दे रखा था तो उसका रिस्क वेटेड एसेट हाई हो जाएगा, यानी उसका ऑटोमेटिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाएगा. वहां पे RBI मैंडेट करता है कि 15% से आपका कैपिटल एडिक्वेसी कम नहीं होना चाहिए. यानी हर स्मॉल फाइनेंस बैंक को एटलीस्ट 15% कैपिटल एडिक्वेसी रखना चाहिए. दैट मीन्स इसके थ्रू एक्चुअली RBI कर क्या रहा है? RBI जो रिस्क एक्सपोजर है इन बैंक्स का उसको लिमिट करना चाहता है. क्यों? क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिपॉजिट्स जो होते हैं वो मार्जिनल लोगों के हैं. अगर इन बैंक्स का रिस्क एक्सपोजर हाई हो जाएगा, ठीक है, और इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ बैंक रन, ठीक है, तो लॉस किसका होगा? बहुत मार्जिनल इन्वेस्टर्स का या मार्जिनल डिपॉजिटर्स का लॉस हो जाएगा. ठीक है. दैट इज वाई दिस हैज बीन एटलीस्ट सेट एट मिनिमम 15%. ठीक है. बाकी बैंक्स के लिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए इट इज 10%. यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को हायर रिस्क लेवरेज दिया गया है एज कंपेयर टू द व्हाट आर दीज स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स. अंडरस्टूड? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. द सेकंड पार्ट इज minuscule share. Okay, what are the findings of this small finance bank का एनालिसिस का जो रिपोर्ट है? इसमें ये है कि 4.4% ऑफ टोटल एसेट्स. ठीक है. यानी इंडिया की इकोनॉमी में जितना भी लोन या एसेट का साइज है बैंक्स का, टोटल बैंक्स का जितना भी साइज है,
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उसका ओनली 0.4% होल्ड करते हैं, दैट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल शेयर। सेकेंड इज ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, जो नॉर्थ साउथ और वेस्टर्न एरियाज ऑफ कंट्रीज हैं, दे हैव मोस्ट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक वहां पे लोकेटेड है, और ये एरियाज ऑलरेडी वेल बैंक्ड हैं, दैट इज द commercial banks are abundantly already present in these north west and southern areas. तो northeast and eastern part of the country that is relatively less banked, जहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पेनिट्रेशन लो है, वहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी लो हैं, दैट इज अ एनोमली। मतलब जहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसलिए किया गया सो दैट जहां पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है वहां पे हम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें, ठीक है। एसेट कॉन्सेंट्रेशन इज ओके, एसेट ओके, यहाँ पे ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन तो है ही नॉर्थ वेस्ट और सदर्न पार्ट्स में, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में एब्सेंस है, रिलेटिव एब्सेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि एसेट भी कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज स्प्रेड ऑफ एसेट्स नहीं है, बहुत सारे लोग के पास लोन नहीं है इन बैंक्स का, या इन बैंक्स की रीच भी बहुत छोटे लोगों में, यानी 60% ऑफ एसेट्स आर ओन बाय टॉप 3 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, यानी जो टॉप 3 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं वही टोटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का जो टोटल एसेट साइज है, ठीक है, उसका 60% खाली टॉप 3 बैंक्स के पास है। यानी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जिस तरीके का बैंकिंग सेक्टर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का ग्रो होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स और ओपन होने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड है इन द फेवर ऑफ टॉप 3 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। ओके, यहां पे एक अच्छी चीज भी है, सारी बुरी चीजें ही नहीं है, ये है कि गुड पीएसएल एंड स्मॉलर लोन्स कवरेज, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट को हम रिलेट कर सकते हैं कहां से, okay, and this also. So this is how you have to prepare current affairs, ठीक है। If I did not tell you these points, so these points were not very much relevant. Fine. So good PSL and smaller loans coverage. The RBI has found out that small financial banks का lending जो है उसका 75% PSL में जा रहा है actually. It has also been mandated by law, ठीक है, कि पीएसएल जो टोटल लेंडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक करेंगे उसका 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग होनी चाहिए, एंड दैट हैज बीन इफेक्टिवली परसूड। यू कैन सी 75% ऑफ द टोटल क्रेडिट इज गोइंग टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एंड मोर ओवर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द लोन्स शुड बी लेस देन 25 लाख, यानी छोटे कस्टमर्स को सर्व करने की जो कंपल्शन है आरबीआई इंपोज करता है जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स पे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आर सक्सेसफुली परसुइंग दैट कंपल्शन, ठीक है, दैट ऑब्लिगेशन, उस ऑब्लिगेशन को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आर सक्सेसफुली परसुइंग। हाउ? द 96% ऑफ टोटल लोन्स एक्सटेंडेड आर बिलो ₹2 लाख, यानी टोटल लोन्स जितना भी एक्सटेंड किया है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स ने उसका 96% ₹2 लाख से कम का है, यानी बहुत स्मॉलर कस्टमर्स को ही ये लोग सर्व कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स वर मेड एट द फर्स्ट प्लेस टू सर्व द स्मॉलर कस्टमर्स, ठीक है, या रिलेटिवली अनबैंक्ड कस्टमर्स, या जिन कस्टमर्स का एसेट साइज छोटा है उनको सर्व करने के लिए ही स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। I hope you understood this. If you have any problem, do comment in the comment section. The next important point is, yeah, it looks cool, right? SpaceX launches 143 satellites. हमारे लिए थोड़ी दुख की बात जरूर है, क्यों? क्योंकि इससे पहले इसरो का रिकॉर्ड था 109 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाउ SpaceX, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, इट इज ओन्ड बाय एलन मस्क, ओके। Elon Musk has now become a pop culture hero, ठीक है। तो it is owned by Elon Musk, and the SpaceX has launched 143 satellites in one go, ठीक है। Which rocket was used? It was Falcon 9. The Falcon 9 is the most famous rocket of what? SpaceX. This rocket has also the capability of reusability, ठीक है। आप YouTube पे सर्च करोगे तो there is a video where it is re-landing, जैसे हम रॉकेट
यूजुअली यूज करते हैं, दैट रॉकेट इज लॉस्ट फॉर एवर, इट इज नॉट रीयूजेबल। बट स्पेसएक्स डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी जहां पे वो इस रॉकेट को, जब ये रॉकेट ऑर्बिट में डिलीवर कर देता है सैटेलाइट्स को, इट कम्स बैक टू अर्थ एंड इट कैन बी रीयूज्ड। दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोपल्शन या कॉस्ट ऑफ पुटिंग सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट्स, ठीक है, क्योंकि हमें हर बार एक नए रॉकेट की जरूरत नहीं होगी, रॉकेट फ्यूल की जरूरत होगी हर बार। एंड रॉकेट्स बनाना ही एक वेरी टफ टेक्नोलॉजी है, टफ टेक्नोलॉजी इन द सेंस कॉमर्शियली बहुत महंगा है, ठीक है। Prior to that, ISRO held the previous record of launching 104 satellites. I'm sorry if I said 109 satellites on its PSLV C-37 rocket, ठीक है, in 2017. Now that record has been broken by Falcon 9 of SpaceX. Okay, from exam point of view, it is important. It was a part of SmallSat rideshare program. SmallSat rideshare program. Most of the satellites are very small, to the size of a cube. ठीक है, रूबिक्स क्यूब की साइज की थी। हाईएस्ट जो सबसे बड़ी सैटेलाइट थी दैट वाज द साइज ऑफ अ सूटकेस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में या स्पेस के फील्ड में या स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, डिफेंस सेक्टर की जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो यूपीएससी के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या यूपीपीसीएस के लिए या स्टेट एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। So that is why I put this in news, put this in the whole lecture, and you can see this rocket. Falcon 9 is a reusable two-stage rocket, ठीक है। इसमें क्या है, reusable two-stage rocket है, और दोनों stages में fuel क्या use होता है for propulsion? The first one is rocket grade kerosene and liquid oxygen, ठीक है। this is the world's first reusable rocket and it uses Merlin class engines, ठीक है, Merlin class engines which uses rocket grade kerosene and okay, fine. Falcon 9 was the name derived from, okay, there's a movie called Star Trek, ठीक है, Star Trek, I don't know, it's a movie or a series, I have never watched it, but it's a fun fact I'm telling you कि स्टार ट्रैक में जो एक स्पेस व्हीकल है उसका नाम फाल्कन 9 है, तो उसके नाम से इसका नाम डिराइव्ड है, और उसमें भी मर्लिन इंजन्स लगे हैं, इसलिए इसमें भी मर्लिन क्लास इंजन्स लगे हैं, ठीक है। दैट इज अ फन फैक्ट आई थॉट इट शुड बी। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट, आरबीआई का सारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आरबीआई जो भी प्रीलिम्स में इकोनॉमी सेक्शन आता है वो या तो अब लाइक वी कैन सी इन द लास्ट पेपर, लास्ट प्रीलिम्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, लाइक पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, दीज थिंग्स, ठीक है। तो whenever there and these all things were in a very in news last year, ठीक है, in a very lighter vein, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी नहीं थे। तो आरबीआई और सेबी के जो भी रेगुलेशंस आते हैं, यू मस्ट ऑलवेज like try to remember them for exam, they are very important. So RBI has released the list of DSIB. DSIB means domestically systematically important banks, ठीक है। Domestic, first of all, those banks which are domestic systemically, यानी that are important for the system to survive. Important obviously bank, those banks which are domestic and important for the system of economic system to survive, ठीक है। तो again I have classified the whole slide into two parts. The first one is what are DSIBs, the second one is what is the release, what the report that has been released says about the DSIBs, ठीक है। तो DSIBs under, okay, इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड देखें, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, ठीक है। 2010 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने रेकमेंड किया कि सारे कंट्रीज को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज अ फोरम, बेसिकली इट इज अ फोरम दैट oversees the financial stability of all the countries around the world, ठीक है। Earlier it was Financial Stability Forum, ठीक है, now it is Financial Stability Board. It is headquartered in Bank of International Settlement, ठीक है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का सेक्रेटेरिएट ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का भी सेक्रेटेरिएट है, ओके।
तो 2010 में this financial stability board made a recommendation, sorry, okay, financial stability board made the recommendation that क्यों 2008 में इकोनॉमिक जब रिसेशन आया तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली था वो डेरन लेहमैन ब्रदर्स, ठीक है, लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स्ड, पानी बंद, ठीक है, लेहमैन ब्रदर्स वाज द बिगेस्ट बैंक ऑफ यूएसए, ठीक है, एंड लेहमैन ब्रदर्स वेंट बैंकरप्ट, जिसकी वजह से रिपल इफेक्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक कोलैप्स, ठीक है। तो व्हाट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड मेड द रिकमेंडेशन दैट एवरी कंट्री शुड हैव, जो बैंक्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, है ना, जिनका एक्सपोजर या साइज बहुत ज्यादा है, जो इतने बड़े हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम के कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उन बैंक्स को हायर सुपरविजन में रखा जाना चाहिए सेंट्रल बैंक्स द्वारा, ठीक है, ओके, दैट वाज अ रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, to implement this recommendation of financial stability board, Basel norms that were announced in 2010, ठीक है, that included some regulations for identification of domestically systematically important banks as well as globally systematically important banks, ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड मेड द रिकमेंडेशन, उस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया गया बेसल 3 नॉर्म्स में, अंडरस्टूड, ओके। In the pursuance of this Basel III norms, RBI declared a framework to deal with domestically systematically important banks, ठीक है। In 2014 that framework was released. उस फ्रेमवर्क में ये था कि इंडिया में जो भी बैंक्स हैं, RBI उन बैंक्स में आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से बैंक्स सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, और उन बैंक्स के ऊपर सुपरविजन भी हाई होगा और उन बैंक्स का जो कैश रिक्वायरमेंट्स हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हाई होंगे, सो दैट इन अ केस ऑफ बैंक रन दीज बैंक्स आर एबल टू एटलीस्ट पे देयर डिपॉजिटर्स बैक। और दूसरी चीज ये है कि इन बैंक्स का एक्सपोजर बहुत हाई है, दैट विल लीड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, इसलिए उनका सुपरविजन भी हाई रखेगा आरबीआई। अंडर द डीसिप फ्रेमवर्क ऑफ 2014 आरबीआई, पहला चीज ये है कि आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर या अनाउंस एवरी ईयर कि विच बैंक इज द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। Under that provision, RBI has retained, basically retained means last year भी यही important banks थे, इस वक्त भी SBI, HDFC and ICICI Bank, these 3 banks have been made the domestically systematically important banks. Under which provision कि RBI को हर साल डिक्लेयर करना होगा कि कौन से बैंक्स डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, that are very important for the like economic order of country to sustain. The second provision is, what is the criteria? The criteria is banks whose asset size is more than 2% of the GDP are called DSIPs. Okay, अगर किसी बैंक का एसेट साइज, एसेट मीन्स द लोन दैट बैंक हैज एक्सटेंडेड, ठीक है, लोन भी एसेट होगा, अगर बैंक का गोल्ड रिजर्व वो भी एसेट होगा बैंक का, बैंक की रिटेन्ड अर्निंग भी एसेट होगी, ठीक है, these all are called assets. Retained earning क्या होता है? For example, जो भी बैंक इनकम जनरेट करता है अपने लिए, that is called retained earning. For example, बैंक takes deposits and banks offer loans. Deposits पे interest rates low होती हैं. For example, किसी आप अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है, उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट पे करता है फॉर एग्जाम्पल 4 to 7%। लेकिन अगर आप कोई लोन लेने जाते हो, ठीक है, लाइक पर्सनल लोन, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक चार्ज करता है वो है अराउंड 10%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। क्यों? क्योंकि आपको लोन देगा बैंक तो आपको चार्ज करेगा 10% इंटरेस्ट, और आप वही इंटरेस्ट से जो पैसा आएगा आप पे करोगे बैंक को इंटरेस्ट, अब कुछ पैसे, अब वो पैसा आएगा, अगर उसी में से पैसे में से लोन किसी को
किसी को इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, ठीक है, तो वो बैंक क्या करेगा, 4%, 5%, 6% के अराउंड इंटरेस्ट पे कर देगा। तो ये 10% और 7% के बीच में जो डिफरेंस है, 3% जो होगा वही बैंक की अर्निंग है। अंडरस्टूड? तो दैट अर्निंग विल बी कंसिडर्ड द एसेट ऑफ द बैंक। तो एसेट क्या क्या हो गया? द फर्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग, द वन आई टोल्ड यू, जो इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस है। गोल्ड रिजर्व्स, ओके। द थर्ड वन इज द लोन्स दैट द बैंक हैज एक्सटेंडेड, दैट विल बी कंसिडर्ड द एसेट ऑफ द बैंक, ठीक है। तो अगर टोटल एसेट साइज 2% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा है, ठीक है, अगर जीडीपी के 2% से ज्यादा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। And these are the outlined criteria, these are the basic issues due to which these banks have to be classified as systematically important banks. What are that? The size, cross jurisdictional activity, complexity and lack of substitute. अब यहां से ही एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ओके, इस पूरे पार्ट से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब इन बैंक्स का हायर सुपरविजन हाई है, ठीक है, प्लस इन बैंक्स का जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर या रिस्क टू वेटेड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये सारा भी बहुत हाई रखा गया है एज कंपेयर टू अदर बैंक्स, ठीक है। तो एंड अदर पॉइंट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल, ठीक है, एंड हेंस पुट अंडर हायर सुपरविजन एंड देयर फेलियर कैन लीड टू अ कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। Under the RBI framework, the DSIB have to hold an additional common equity tier 1 capital. Okay. Sorry. These banks have to hold at least common equity tier 1 capital in addition to what the other banks are holding. जो भी other banks के लिए common equity tier 1 capital का recommendation है, उससे इन बैंक्स को एडिशन में कितना होल्ड करना है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी 2018-19 के लिए एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू अंडरस्टैंड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। व्हाट इज दिस कैपिटल कॉमन इक्विटी टियर रेशियो, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। जहां भी रेशियो की बात होती है, रेशियो शोज अ दिस डिवीजन, ठीक है। तो मतलब किसी बैंक का कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, और उसका रिस्क वेटेड एसेट, हमने लास्ट वाली स्लाइड में कैपिटल एसेट रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी CRAR या CAR जिसको कहते हैं वो समझा, ठीक है, वो 10% है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के लिए मिनिमम 15% है। नाउ सिमिलरली दिस इज व्हाट CET1 अपॉन रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जो बाकी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक के लिए 10.5% है कैपिटल इक्विटी टियर 1 टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, बट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.5 प्लस 0.45% लास्ट ईयर था 2018-19 में, एंड दिस ईयर इट हैज बीन मेड 0.6%, ठीक है। तो ग्रेजुअली दिस इज बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है, सो दैट दीज बैंक्स, इन बैंक्स का जो रिस्क एक्सपोजर है उसको कम किया जा सके। अंडरस्टूड? ओके। एंड सिमिलरली ICICI बैंक एंड HDFC बैंक के लिए 0.15% था एंड दैट हैज नाउ बीइंग मेड 0.20%, ठीक है। Now we will take a bit of detour and understand what is common equity tier 1 capital and common equity tier 2 capital and all these concepts, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको समझाया था कैपिटल एसेट टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो टोटल कैपिटल, आपका कैपिटल टोटल कितना है आपके पास, टोटल आपके पास कोर कैपिटल कितना है और आपके रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं। दैट मीन्स अगर आप अपने रिस्क वेटेड एसेट्स को बढ़ाओगे, ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर एक्सपोजिंग योर रिस्क टू अ हायर एक्सटेंट, your capital asset reserve will be down, ठीक है। तो we will try to understand what is common equity tier 1 capital, common equity tier 2 capital, ठीक है। We are trying to understand common equity tier 1 capital and common equity tier 2 capital and all these things, ठीक है।
तो देर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स. किसी बैंक का कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. द फर्स्ट इज टीयर 1 कैपिटल, द सेकेंड इज टीयर 2 कैपिटल. ठीक है, ओके. इसमें टीयर 1 कैपिटल में पेड अप कैपिटल, आई एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. ठीक है, यहां पे डेट, अंडरस्टूड. पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा तो फिर आपको समझने में मुश्किल हो सकती है. द थर्ड वन इज पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है कैपिटल का, जो ये टोटल कैपिटल है किसी बैंक का, उसका दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है. द फर्स्ट वन इज टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल. टीयर 1 कैपिटल इज पेड अप कैपिटल, दैट इज द इनिशियल कैपिटल किसी बैंक का. फॉर एग्जांपल, आप बैंक स्टार्ट करने जाते हो, आपके पास 10 बिलियन रुपीज है, दैट विल बी योर पेड अप कैपिटल. या फॉर एग्जांपल, इफ योर बैंक इश्यूज एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर आपका बैंक इशू करता है, तो आप बेसिकली शेयर इशू करते हो मार्केट में. अब वो शेयर सब्सक्राइब हो गए, उन शेयर्स के थ्रू जो अर्निंग आई वो आपकी पेड अप कैपिटल होगी. अंडरस्टूड. द सेकंड पॉइंट इज रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग वी अंडरस्टूड, ट्राई टू अंडरस्टूड कि जो बैंक अपनी अर्निंग करता है अपने डेली ऑपरेशंस के थ्रू, वो उसकी रिटेन्ड अर्निंग है. लाइक इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंस की वजह से जो अर्निंग बैंक की होगी, दैट विल बी कॉल्ड उसकी रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, and that is the third one is reserves, for example gold and all this. This is a liquid form of capital. This is highly liquid. This is debt. Debt means bonds, debentures, है ना, preferred stock, preference shares, for example. ठीक है, तो टीयर 1 कैपिटल as compared to, I hope you have written it down. If not, please write it down because the board is small and I have to remove it again. ठीक है, तो Basel norms prescribe minimum tier 1 capital, okay, minimum tier 1 capital to the risk weighted asset ratio should be at least what, 10.5%. That means minimum tier 1 capital should be at least this ratio should be at least 10.5%. ठीक है. Now अगर इसको हटा दें and we add a term ratio here, that is this should be 10.5%. जब हम रेशियो की बात करते हैं, रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स. दैट इज Basel norms prescribe that minimum tier 1 capital to risk weighted asset ratio should be 10.5%. ठीक है, सॉरी. नाउ दिस हैज टू पार्ट्स. ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल. ठीक है, and the second one is additional capital, that is not of our concern. अभी हमने देखा कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्रिस्क्राइब करता है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल दैट शुड बी बाकी बैंक्स के प्लस 0.45% फॉर डीसिब्स. अंडरस्टूड. डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए ये टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, बाकी CET1 जो है बाकी बैंक्स के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें 0.45% और ऐड करके होना चाहिए. ठीक है. नाउ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है, कॉमन शेयर्स. प्लीज राइट इट डाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. कॉमन शेयर्स,
कॉमन शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर्स में दो चीजें होती हैं, ठीक है। कॉमन शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है? अगर आपकी कंपनी कोई आईपीओ इशू करती है, आईपीओ मीन्स आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज इफ इट रिलीजेस इट्स शेयर इन द मार्केट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन शेयर, ठीक है। अब व्हाट इज प्रेफरेंशियल शेयर्स? अब कॉमन शेयर होता कुछ प्रेफरेंस भी होगा, प्रेफरेंशियल भी होगा, यानी प्रिविलेज शेयर्स भी होंगे। ये तो हो गया कॉमन शेयर जो कि कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। व्हाट आर प्रेफरेंशियल शेयर्स? प्रेफरेंशियल शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि एसबीआई मार्केट में इशू करेगी, लेकिन कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स ही खरीद सकते हैं उसे। दोज आर कॉल्ड प्रेफरेंशियल स्टॉक या प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। एंड वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉमन शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स इज, please note it down also, that common shares are offering the shareholder a share in the company itself, ठीक है। But preferential shares do not endow the shareholder with any voting rights into the company, ठीक है। That means although the name is called preferential share, ठीक है, still it is an instrument of debt. Debt holder does not has voting right in the company. Who has the voting right in the company? Shareholder. शेयर का मतलब हिस्सेदारी। अगर आपके बैंक की या आपकी कंपनी की हिस्सेदारी आपने किसी दूसरे में बांट रखी है, तो दैट पर्सन, द वन हु इज होल्डिंग योर कंपनीज हिस्सेदारी, दैट पर्सन कैन हैव अ से इन योर पॉलिसीज या कंपनी की पॉलिसी। जो एनुअल जनरल मीट्स होती हैं कंपनीज की, फॉर एग्जांपल रिलायंस रिसेंटली कंडक्टेड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग दिसंबर, तो जो एनुअल जनरल मीट्स होती हैं उसमें जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो आते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स नहीं आते हैं। व्हाई? बिकॉज प्रेफरेंशियल शेयर्स आर व्हाट? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। कॉमन शेयर्स आर नॉट डेट इंस्ट्रूमेंट्स बट देयर आर शेयर होल्डिंग्स, दे आर इक्विटी, ठीक है। Okay, understood. I hope you understood the difference between common share and preferential share. This is very important. Very important. I would insist that you write it down in your notebook कि common share and preferential shares में difference है. Understood. तो common shares, तो common equity tier 1 capital क्या है? Common share पहले तो होगा, दूसरा क्या होगा? Retained earning. तो ऑब्वियसली टीयर 1 कैपिटल के ही दोनों पार्ट हैं, तो टीयर 1 कैपिटल में एडिशनल शेयर्स, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होता है और कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होता है। एडिशनल में बहुत टेक्निकल में हमें डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें यहाँ पे डील करना है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। नाउ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये बैंक का कोर कैपिटल है, that is this is the like first line of defense of the bank. कोर जो बैंक का कोर अर्निंग है, ये बैंक को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कोर कैपिटल शुड बी एटलीस्ट व्हाट, इसका ये हमने कितना देखा? 10.5% है, ठीक है। अच्छा, ये डीसिप को हटा देते हैं हम, क्योंकि दिस माइट बी कंफ्यूजिंग समवन। Basel prescribes that minimum tier 1 capital to risk weighted asset ratio should be 10.5%. Basel norms again prescribe that the common equity tier 1 capital to risk weighted asset should be at least 4.5%, ठीक है, यानी बाकी 6% ये हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। यानी ये अगेन बेसल नॉर्म्स है कि 4.5%, आई होप दिस पॉइंट इज विजिबल, 4.5% ऑफ द टोटल टीयर 1 कैपिटल शुड बी कोर कैपिटल ऑफ द बैंक। ये कैपिटल का जो स्पेसिफिकेशन है, ये इशू इसलिए किया जाता है सो दैट द रिस्क एक्सपोजर ऑफ द बैंक कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो अब ये आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, व्हाट इज मिनिमम, व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, हमें यही समझना था, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड कॉमन शेयर्स, ठीक है। अगेन बैक टू द लेक्चर।
तो अब आई होप यू अंडरस्टूड कि कॉमन इक्विटी, ओके सॉरी, आई होप यू अंडरस्टूड कि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल क्या है ना? कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल शुड बी अंडरस्टूड बाय नाउ। ये जो बाकी बैंक्स हैं उसके एडिशन में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को फॉलो करना होता है, इतना या इतना, अब जो रिवाइज्ड है, ओके, that is all. Now I hope you understood the whole common DSIP का concept. Common equity tier 1 capital includes, okay, we discussed it right now, common shares, bonds, preferred stock या retained earnings. What should be the answer? Please comment in the comment section. Fine, the answer is common equity tier 1 capital includes common shares, retained earnings, share issued by subsidiaries. For example, SBI की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है वो भी शेयर इशू कर रही है तो वो भी किसमें कंसिडर किया जाएगा? उस SBI के टियर 1 कैपिटल में, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल, ठीक है। एंड द CET to RWA मतलब कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बेसल नॉर्म्स में कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 4.5%। एंड टोटल टियर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 10.5%। ठीक है। यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अगेन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग हैज रिसेंटली रिलीज्ड द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब नीति आयोग जब कोई चीज रिलीज करती है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया हो इस चीज को तो प्लीज डू, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट नीति आयोग रिलीज करती है तो वो किस चीज का एनालिसिस करती है? नीति आयोग की सारी रिपोर्ट्स में एनालिसिस होता है स्टेट्स का कंपैरिजन, ठीक है। नीति आयोग रिप्लेस्ड व्हाट? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग is an executive body. It is not neither statutory body nor a constitutional body. It is an executive body, ठीक है। तो नीति आयोग has recently released the India Innovation Index, which compares the states on the basis of the innovation, the kind of innovation, the kind of research and development they are doing, ठीक है। तो नीति आयोग का फॉर्मुलेशन ही हुआ था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अलॉन्ग विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब हम बात करते हैं तो सेंटर वर्सेस स्टेट की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो अमंग्स द स्टेट्स की बात करते हैं। इन चीजों को बहुत ही क्लियर अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। नाउ इंडिया, ये तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। सिमिलरली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। WIPO is headquartered in Geneva, ठीक है। तो WIPO releases Global Innovation Index. India has been ranked 48th in 2020. This is important. तो जब नीति आयोग इंडिया में इनोवेशन का असेसमेंट कर रहा था तो उन्होंने दो पैरामीटर्स पे असेसमेंट किया है। द फर्स्ट वन इज इनेबलर्स एंड द सेकंड वन इज परफॉर्मेंस, ठीक है। द इनेबलर्स में, इनेबलर्स मतलब इनपुट, फॉर एग्जांपल लाइक ठीक है, जैसे ये है, यहां पे आपने इनपुट क्या दिया है और यहां पे आउटपुट क्या प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब इनपुट में क्या है और आउटपुट में क्या प्रोड्यूस हुआ है, एंड दिस इज इनोवेशन इकोसिस्टम, ठीक है। इनोवेशन इकोसिस्टम। I make all these block diagrams so that your own preparation, the way you are preparing, that gets affected, because when you start making all these diagrams and all these flow charts, it makes our preparation easy, because इतना सारा पढ़ने को है ना, तो कोई strategic तरीका होना चाहिए। For जैसे I have deconstructed this whole India Innovation Index like into two, enablers and performance। enablers में क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट वाज क्वेश्चन इन व्हाट 2018 प्रीलिम्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, these are enablers, these are basically the input,
Is the government working on all this? And is that government producing output, innovation outcomes? These are knowledge output and knowledge diffusion. Knowledge output means, knowledge output को हम measure कैसे कर सकते हैं? The amounts of patent that are being filed, that represents knowledge output. ठीक है, पेटेंट फाइलिंग को हम नॉलेज आउटपुट से क्यों रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि नॉलेज का आउटकम अगर हम किसी तरीके से मेजर करना चाहें तो वो किसी कंट्री का, फॉर एग्जांपल यूएस फाइल्स एटलीस्ट 10,000 पेटेंट्स पर ईयर, इंडिया फाइल्स 4,000 पेटेंट्स पर ईयर, दैट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज नॉलेज गैप. ठीक है, तो नॉलेज आउटपुट को कैसे मेजर करेंगे? द फर्स्ट प्राइमरी इज, या तो हम ये देख सकते हैं कि कितने लोग R&D में इनरोल्ड हैं, दैट विल रिप्रेजेंट नॉलेज आउटपुट. ठीक है, और दूसरा पॉइंट है नॉलेज डिफ्यूजन. हाउ आर दोज पेटेंट्स बीइंग यूज्ड बाय द कंपनीज एंड ऑल द people, and are these patents only being filed as a knowledge output, and or are these patents also being used for the development of the country? That is called knowledge diffusion. ठीक है, तो ये इनेबलर्स और आउट परफॉर्मेंस आउटकम पे असेसमेंट किया है. ठीक है, द बेस्ट परफॉर्मर्स आर, फर्स्ट वन इज कर्नाटका, सेकेंड वन इज महाराष्ट्र एंड द थर्ड वन इज तमिलनाडु. दीज थ्रीज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, उत्तर प्रदेश इज ऑन द 9th नंबर, 10th नंबर पे पंजाब है. ठीक है, इश्यूज आइडेंटिफाइड एट नेशनल लेवल आर रीजनल इम्बैलेंसेस. इंडिया में आप जब भी फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो रीजनल इम्बैलेंस, या इंडियन इकोनॉमी को भी पढ़ेंगे तो रीजनल इम्बैलेंस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज अफेक्टिंग आवर कंट्री. रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है. लैक ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स वो जगह होती है जहाँ पे स्टार्टअप्स को इनिशियल मेंटरिंग, फंडिंग और गाइडेंस मिलता है. इंक्यूबेटर सेंटर्स मोस्टली IITs और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में खोले जाते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज और स्किल अवेलेबल है. लैक ऑफ ग्रास रूट इनोवेशन, दैट मीन्स ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन की कमी. ठीक है, लेकिन आई डोंट नो हाउ दिस इज नॉट अवेलेबल. इंडिया में तो जुगाड़ बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड ग्रास रूट इनोवेशन. ठीक है, ऑन दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट. बट स्टेट लेवल पे क्या है? लैक ऑफ स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशन सेल्स. ठीक है, एवरी स्टेट माइट, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट मेकिंग investments into what? R&D. ठीक है, that is one issue. The second is lack of state level engagement. States are not engaging amongst themselves, and states are not also engaging academia, है ना. Most of the universities जो अच्छी हैं वो central government की हैं. State universities are not promoting much innovation. Now these are the 2 points I made as observation is India spends 0.7% of GDP on R&D. Where is the top countries which are in like R&D, like Japan, South Korea, Taiwan, Israel? ये countries 4.5% of the GDP अपना spend करती हैं किस पे? R&D पे. इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर भी 3% नहीं है GDP का. ये R&D पे इतना खर्चा करते हैं कंट्रीज. ठीक है, बट एक ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D हैज कंसिस्टेंटली ग्रोन ओवर टाइम. दैट इज, जो एक्सपेंडिचर है वो अभी बढ़ा है. ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है R&D पे, दैट हैज ग्रोन बाय द रेट ऑफ 45%. ठीक है, प्रीवियस ईयर का 45% ज्यादा है इस साल. दैट हैज बीन एन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. स्टेट गवर्नमेंट्स का 7 to 10%. जो स्टेट गवर्नमेंट्स का एक्सपेंडिचर है उसका क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम देखें, CAGR जिसको कहते हैं, तो दैट इज अराउंड 7 to 10%. और सेंट्रल गवर्नमेंट का दैट इज अराउंड 45%. ओके,